Today we are doing case study, Civil Services Exam 2021, case 12, and our objective like solving case studies में सबसे important दो चीज़ें हैं कि आप केस को बहुत अच्छे से समझें, उसमें जो बातें कही गई हैं उस पर आप जो सिलेबस है उससे एक मैच, जो थीम है, जो वैल्यूज़ हैं उससे मैच करें, एंड देन एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर से, लॉ से, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के साथ एक क्लियर कट आंसर लिखें जो प्रैक्टिकल हो और एक सिंसियर मेच्योरिटी दिखाता हो, रादर देन हाइपोथेटिकली लाइक बात करने से या फिर लाइक हवा में पुल बांधने से अच्छा है कि आप एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करें. सो विदाउट डिले चलो देखते हैं भाई केस क्या है हमारा. So the case is Pawan is working as an officer of state government for last 10 years. As part of routine transfer, he was posted to another department. He joined in new office along with 5 other colleagues. Okay, यहाँ तक स्टोरी क्लियर है. The head of the office was a senior officer conversant with functioning of the office. As a part of general inquiry, Pawan gathered that again यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैसी इंक्वायरी है, क्या बात हो रही है. जनरल इंक्वायरी में Pawan gathered that his senior officer carries the reputation of being a difficult and insensitive person having his own disturbed family life. Okay, so his senior has his family life disturbed or is a called like in general inquiry is a difficult person. So यहाँ पे there is a case being made over here. His senior is difficult with difficult family life. So either the person like the officer is that of a disturbed person and it's percolating everywhere, or it can be the case that his family life is disturbed and it is percolating in his professional life. So personal life and professional life का एक केस बन सकता है यहाँ पे, but इस श्योर नहीं है. Initially all seemed to go well. However, after some time Pawan felt that his senior was belittling him, and so starting में initially all seemed to go well. After some time, okay, तो ये आपको दिखा रहा है कि after knowing that still he was good, like things were going, but after some time he started that senior officer was belittling him and at times unreasonable. Whatever suggestion given or view expressed by Pawan in the meetings were summarily rejected, and the senior officer would express displeasure in the presence of others. So now the senior officer is rejecting his views and showing a displeasure. Okay, it became pattern of the boss's style of functioning to show him in bad light, highlighting his shortcoming and humiliating publicly. Now this is well established कि अगर ऐसा कुछ है तो it's a poor work culture दिखा रहा है, it's a bad work culture. It became apparent that though there are no serious work related problems, shortcomings, the senior officer was always on the one pretext or other and would scold and shout at him. So misbehavior है हमारे senior officer का. This continuous harassment and public criticism of Pawan resulted in loss of confidence, self-esteem and equanimity. So Pawan कि भैया mental effect पे असर पड़ रहा है. That's very clear in शब्दों से. Pawan realized that his relation with his senior officer are becoming more toxic, and due to this he felt perpetually tense, anxious and stressed. ठीक है. His mind was occupied with negativity and caused him mental torture, anguish and agony. Eventually he continued with that. Eventually it badly affected his personal and family life. तो सेकेंड केस में तो पवन के केस में डेफिनेटली है कि प्रोफेशनल लाइफ हैज पर्कुलेटेड इन हिज पर्सनल लाइफ एंड इज निगेटिवली अफेक्टिंग हिज पर्सनल लाइफ. तो प्रोफेशनल लाइफ का स्ट्रेस जो है पर्सनल लाइफ में जाके उसको अफेक्ट कर रहा है. He was no longer joyous, happy and contented even at home. Rather, without any reason, he would lose his temper with his wife and other family member. The family environment was no longer pleasant and congenial. His wife, who was always supportive to him, also became a victim of his negativity and hostile behavior. Okay, so you can see like that Pawan itself, जो बॉस वाला केस है कि बॉस इनका वर्क प्लेस पे ऐसा है और पवन हैज बिकम सिमिलरली समवॉट
लाइक दैट. सो लाइक द फर्स्ट केस हमने बात किया था कि बॉस माइट ऑल्सो बी somewhat a victim of such issues due to harassment. So it's not apparently given in this case, but the possibility exists. That's all. ठीक है. So due to harassment and humiliation suffering by him in the office, comfort and happiness virtually vanished from his life. Thus, it damaged his physical and mental health. तो साफ सीधी बात है कि इतना स्टैब्लिश कर दिया है केस ने. देन हमारा ओवरऑल केस क्या है? केस इज अबाउट हैविंग मिक्सअप ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ स्ट्रेस जो है, परकुलेशन ऑफ प्रोफेशनल स्ट्रेस इन पर्सनल लाइफ affecting mental health and work home environment, and second is that of poor work culture and lack of insensitivity, team spirit. तो दो चीज़ें हमारा इस्टेब्लिश हैं इस केस में, डेफिनेट है. एक तो ये और दूसरा वर्क कल्चर रिलेटेड है. तो उसमें क्या क्या शब्द है खुद ही इन्होंने जो बता रखा है वही शब्द हमें यूज़ करना होता है. ठीक है. केस स्टडी दो चीज़ों पे हाईलाइट कर रही है, एक पुअर वर्क कल्चर पे और ये पर्सनल लेवल पे, दोनों के साइड से मैनेजमेंट जो है हमारा ये वेल एस्टैब्लिश है केस में. तो यही आप बताओगे द अबव केस स्टडी शोज परकुलेशन ऑफ प्रोफेशनल स्ट्रेस इन द पर्सनल लाइफ एंड देन वर्क कल्चर. चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल विद पवन टू कोप विद दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन से कोप करने की क्या ऑप्शंस हैं भाई? तो सिंपल हमारा होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल. पॉजिटिव मीन्स you do something that would address the issue. So problem specific, emotion specific and do nothing. तो प्रॉब्लम स्पेसिफिक में ऑप्शन ये होगा कि बॉस से बात करें, मतलब स्टेप वाइज स्टेप होंगी, इसमें एक ही चीज़ नहीं होगा. पहले आप बॉस से बात करने की कोशिश करोगे, सीनियर से मीडिएशन करने की कोशिश करोगे, अगर नहीं होगा तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इनकी कंप्लेंट करेंगे हम. दिस इज अ ग्रेडेड प्लान. ठीक है. देन और क्या ऑप्शन है कि आप ऐसे ही नेगेटिव चीज़ को इग्नोर करो, इनके बॉस को इग्नोर करो और अपना काम करो. ट्राई टू बैलेंस लाइक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को सेपरेट करते हुए बॉस को इग्नोर कर सकते हो. ठीक है. तीसरा एस्केपिस्ट काइंड अप्रोच होता है, तो उसमें आप ये रेजिग्नेशन या ट्रांसफर आप सीख कर सकते हो. ठीक है. यहाँ से एस्केप कर लो सीधे सीधे. ओके. तो हमारे तीन ऑप्शन तो क्लियर हैं इसमें. चलो देखते हैं भाई इन्होंने क्या लिखी है. ओके. तो फर्स्ट इधर है और सॉरी तो फर्स्ट इन्होंने केस का इंट्रो, हमेशा केस का एक ओवरऑल इंट्रो है, तो हमने इंट्रो में आइडेंटिफाई कर लिया दो बातें हैं जो कि यहाँ पे आनी चाहिए. द गिवन सिचुएशन रिफ्लेक्ट द टॉक्सिक वर्क कल्चर. हाँ, वर्क कल्चर पे अपने बात कर ली. इन मेंटल हैरेसमेंट एट वर्किंग प्लेस, वर्क प्लेस होता है, वर्किंग प्लेस नहीं. सो यहाँ पे आप ये वर्क कल्चर का ही आपने एक्सटेंशन कर दिया. दूसरा जो है एक रह गया है ना, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का मिक्सअप आपने इस केस में यहाँ इंट्रो में नहीं बताया है. सेकंड इन्होंने क्या लिखा है, द केस स्टडी हाईलाइट द इशू ऑफ पुअर वर्क कल्चर. आपने भी वर्क कल्चर पे तो पकड़ लिया है. विच कैन कॉस्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज. अगेन आपने भी सेकंड पॉइंट, अगेन हमने कितना अच्छे से एस्टैब्लिश किया है ना केस में दो चीज़ें हैं, तो आपका भी रह गया है सेकेंड पॉइंट. देन स्टेक होल्डर कौन है? पवन है, बॉस है, फैमिली है एंड अदर एम्प्लॉयज. बॉस इनकी भी फैमिली हो सकती है. ठीक है. तो पीपल एट होम, एम्प्लॉयज या वर्क प्लेस विद एम्प्लॉयज, पवन एंड बॉस. तो ये तो डेफिनेट है. ओके. इन्होंने क्या रखा है भाई स्टेक होल्डर में? अब ये क्या है? व्हाट इज दिस शोइंग? आप ये डायग्राम क्या दिखाना चाह रहे हो? ये सोल्यूशन तो है नहीं. अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे होते तो बात होती कि हाँ सीनियर ये, तो आप ये लास्ट में लेके आओ. डायग्राम अच्छा है बट व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन, अगर यहाँ सॉल्यूशन पहली बात मांगता है तो अभी तो सॉल्यूशन नहीं मांगा, अभी तो हमसे पूछा है कि ऑप्शंस क्या हैं. सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स कि आप ऐसी चीज़ सिर्फ इसलिए कि आपको डायग्राम आता है मत बनाइए. हाँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल आप ये इफेक्टिव एक्सप्रेशन एक हो सकता है. तो ऑप्शन अवेलेबल में इन्होंने क्या लिखा है? कैन सीक ट्रांसफर रेजिग्नेशन. ठीक है. कैन गो एंड टॉक टू हिज बॉस एंड एड्रेस द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. ही कैन कंटिन्यू टू वर्क इन द सेम कंडीशन ऑफ हैरेसमेंट. ठीक है. कुछ नहीं करो, इग्नोर करने वाली सिचुएशन. ठीक है. तो यहाँ पे कंटिन्यू वाइल इग्नोरिंग करने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है. देन इन्होंने क्या लिखा है? ऑप्शन वन. ये अगेन ये इट्स ए गुड अप्रोच कि आप हमेशा ऑप्शन वन जो है ऐसे पूरा लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो. ऑप्शन वन, कंटिन्यू टू वर्क इन सच मेंटल टॉर्चरिंग कंडीशन.
ये क्या लिखा है, डोंट समथिंग, आई कैन नॉट क्लियरली रीड इट. सेकेंड ऑप्शन इज विल रिजाइन और सीक ट्रांसफर टू गेट रिलीफ फ्रॉम द सिचुएशन. ठीक है. विल फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑफिसर इन द पुलिस स्टेशन. कैसे भाई, अगेन आई टेल यू ओवर एंड ओवर, दीज आर ग्रेडेड थिंग्स. ग्रेडेड मतलब जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट ऐसे नहीं कि आप यू गो एंड फायर द गन. आपका पहले बॉस से बात करोगे, फिर इंटरनल कमिटी होगी. अगर वहाँ पे भी नहीं है, या कंप्लेंट ग्रीवांस रेडिसल मैकेनिज्म हर उसमें होता है. एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिस, दैट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट टू एड्रेस सच इशूज. एंड देन नहीं बचता है आखिर में, और ऐसा एग्नी है तब आप लास्ट लाइक, बट ऐसा केस यहाँ बन नहीं रहा है. ठीक है. तो पुलिस स्टेशन तो आप अभी नहीं जा रहे हो भाई. अप्रोच पवन शुड, ओके. तो ऑप्शन हमने भाई देख ली कि हमारे 3 ऑप्शन जो है, दोनों लोगों ने लगभग लगभग वो ऑप्शन लिख दिए हैं. नेक्स्ट है हमारा व्हाट अप्रोच. अब यहाँ पे अप्रोच की बात कर रहा है, स्टेप्स की बात नहीं कर रहा. ध्यान रखना इस चीज को. अप्रोच शुड अडॉप्ट फॉर ब्रिंगिंग पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड कॉन्जेनियल इन्वायरमेंट इन हिज ऑफिस एंड होम. दोनों ही जगहों पे ये क्या अप्रोच ले सकते हैं. तो होम वाले में तो सीधा सीधी बात है भाई कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को सेपरेट रखो. अब उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देखना पड़ेगा एक बार. ठीक है. ऑफिस में क्या है, हमें रेजोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन हमें साफ साफ आइडेंटिफाई है कि जो ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो ये हमारा अप्रोच है. अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमारे पास 3 अप्रोच मतलब स्टेप्स हैं, 3 जगह पे हम काम कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ केस ऑफ इमोशनल अवेयरनेस. ठीक है. मेंटल हेल्थ एंड मेडिटेशन की भी आप बात कर सकते हो. तो यू कैन टेक पॉजिटिव अप्रोच फॉर पॉजिटिव एंड मेंटल हेल्थ रेजिलियंस. ठीक है. ये दोनों पे आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों के लिए ही अप्लाई हो जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो देयर. तो आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हो ये दोनों के साथ साथ कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं. ठीक है. देन इन्होंने क्या पूछा है, एज एन आउटसाइडर. अब देखते हैं इन लोगों ने क्या लिखा है पहले. तो इन्होंने बात किया है अप्रोच पवन शुड अडॉप्ट इन ऑफिस. ही कैन फर्स्ट लुक इनटू. देखो अप्रोच जब बात करें तो पहले अप्रोच बात कर लो. अप्रोच क्या है, प्रॉब्लम रेजोल्यूशन. जो भी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच या फिर रेजोल्यूशन. ठीक है. जो भी आपको हो. और वो क्या है, बैड एटीट्यूड ऑफ बॉस. तो इसको आप सॉल्व करने की तरफ कदम उठाओगे. उसके लिए आप क्या कर सकते हो वो आप यहाँ पे बात करोगे. तो पहले ये क्लियर लिख लो. He can first look into his own action and see if any of his doing has brought all this on him. तो आप बेसिकली बात कर सकते हो कि इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ करेक्शन जो है जितना हो सकता है कर सकता है. बट ऐसा दिखा नहीं रहा, बट हाँ इट्स सजेस्टेबल. देन कैन गो टॉक टू हिज बॉस अबाउट द प्रॉब्लम एंड टुगेदर कैन कम अप विद सम सॉल्यूशन. हाँ ठीक है. ग्रेडेड हम जा रहे हैं तो पहले अपने आप से, फिर बॉस से, फिर सीनियर्स से, या जो भी हमारा एचआर है वहाँ पे हम फाइनली जाएंगे. लास्ट में हमारा कंप्लेंट जो बनता है ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च करेंगे. इफ बॉस स्टिल बिहेव्स इन सिमिलर मैनर देन पवन कैन फाइल अ रिटन कंप्लेंट अबाउट हिम टू सीनियर्स बॉस. ठीक है. सो सिंपल अप्रोच है, बट इससे पहले आपको यहाँ पे अप्रोच के बारे में है. अप्रोच में आप क्या स्टेप करते हो वो बात अलग है. इन होम तो यहाँ पे भी आप लिखोगे कि अप्रोच क्या है, सेपरेटिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, या बैलेंसिंग, जो भी आप लिखना चाहो, विथ मेंटल हेल्थ रेजिलियंस आप डेवलप करोगे. 2 चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल है. ही कैन टॉक टू हिज वाइफ. ओके. वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम ये हो सकता है, बट गिवन कि आप इस स्टेटस में है तो आप यू कैन सीक, सीधी सी बात है कि यू कैन सीक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हेल्प. ठीक है ना. वाइफ से आप ये अज्यूम कर रहे हो कि दैट पर्सन इज वेल इक्विप्ड. अगर ऐसा होता केस तो ये नौबत ही नहीं आती ना. आती क्या, खुद सोचो. तो यू हैव टू बी वेरी ऑफ व्हाट इज गिवन. दिस इज नॉट द केस. अगर ये होता तो दिस सिचुएशन वुड नॉट हैव अरिजन. तो सीधी सी बात है कि यू नीड सम प्रोफेशनल हेल्प. तो दैट इज व्हाट हियर इट इज गोइंग टू बी. इसमें आप इमोशनल अवेयरनेस, मेंटल रेजिलियंस के लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हो, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड यू कैन प्रैक्टिस एंड डेवलप स्किल फॉर सेपरेशन ऑफ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. ये आपका आ जाएगा. दीज आर द स्टेप दैट यू विल टेक टू रियलाइज दिस
approach of separating personal professional life and developing mental resilience. Can ask for cooperation and understanding. ये चीज़ें आप फर्स्ट ये डेवलप करने के बाद आप कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, अप्रोच अगेन, first approach will take to senior officer directly as there is no serious work related issue, so ask the reason behind insensitive behavior with them. Okay, अगेन आप क्या कर रहे हो, आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तो कोशिश कर रहे हो, तो आप अप्रोच को यहाँ पे नाम दोगे। विदाउट दैट आपका अगेन ये स्टेप्स हैं, ये अप्रोचेज नहीं है, ठीक है। विल टॉक टू ऑफिस कलीग एंड कन्विंस देम द इशू, कन्विंस देम द इशू, ये अगेन यहाँ पे लैंग्वेज इशू है, सो दैट दे विल टुगेदर टेक कलेक्टिव एक्शन, बट दैट विल डिस्ट्रॉय योर लाइक जो बॉस वाली चीज़ें हो सकता है वो भी विक्टिम हो। तो विल फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट सीनियर ऑफिसर अंडर डीलिंग विद द इशू ऑफ मेंटल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये आपके पास ऑप्शन बचता है, बट दैट विल हैव टू बी लाइक प्रोसीडेड विद इंटरनल कमिटी, या फिर आप जो कंप्लेंट करोगे उसके बाद जो है आपको साबित करना पड़ेगा ना। अगर आप अकेले जाके ऐसे बात करें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश दिस। सो बेस्ट अप्रोच यही है हमारा कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये हमारा एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच दिखाता है, मेंटल रेजिलियंस एंड गुड वर्क एथिक्स आपका खुद भी दिखाता है कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। देन होम पे इन्होंने पर्सनल एंड प्रोफेशनल, हाँ ये आपने देखो यहाँ पे लिखा है ये चीज़ बैलेंसिंग है, तो अप्रोच ये है, ठीक है। प्लस एडिशनल आप मेंटल हेल्थ रेजिलियंस डेवलप करोगे। विल टॉक टू वाइफ डायरेक्टली रिगार्ड, भाई वाइफ तो ऑलरेडी सपोर्टिव है, बात कर ही रहे हो, अच्छा थोड़ी ना कहीं लिखा है कि बात कभी आपने नहीं किया। तो दिस हैज़ अगेन जो आपको फर्स्ट केस में बताया कि अगर ऐसा होता तो कंसल्ट वाइफ नहीं, कंसल्ट विद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, सीनियर से आप कंसल्ट कर सकते हो, एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट हियर एंड देन डेवलप योग मेडिटेशन जो भी आपका है मेंटल हेल्थ रेजिलियंस के लिए। नेक्स्ट है हमारा एज एन आउटसाइडर व्हाट suggestion for both boss and subordinate to overcome the situation, what are your suggestion भाई। तो ओवरकम करने के लिए है देन इम्प्रूविंग व्हाट वर्क परफॉर्मेंस, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हाइजीन। देखो बात करते हैं तो यही है कि इमोशनल अवेयरनेस का भी है और मेंटल हेल्थ के लिए भी है, और वर्क परफॉर्मेंस तो सीधा सीधा बात है कि अगर ये दोनों चीज़ें सही हैं तो दिस विल लीड टू वर्क परफॉर्मेंस। ओवरकम करने के लिए आपको एक आइस जो बना हुआ है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। मोस्ट पीपल व्हाट दे डू इज दे कंटिन्यू टू सफर इन साइलेंस, सो दैट इज समथिंग लाइक विच इज रिक्वायर्ड ओवर हियर, दैट यू टेक सम बोल्ड स्टेप्स। अदरवाइज कई लोगों को समझ ही नहीं आता है, खैर बट वो रियलिटी है, बट हमें लिखना है तो यू विल हैव टू मेंटेन अ स्टैंडर्ड, ठीक है। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है भाई। सजेशन बाय मी एज एन आउटसाइडर टू सेपरेट पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ आउट। यहाँ पे किसको बोल रहा है, बॉस एंड सबऑर्डिनेट के लिए ना, तो आपने फॉर बॉस के लिए लिखा है, ठीक है, इन पे अप्लाई होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर, आप सजेशन दे रहे हो या आप इनको समझा रहे हो, है ना, तो आपको थोड़ा सा और इलेबोरेटिव यहाँ पे होना पड़ेगा, ठीक है ना। रिस्पेक्टिंग सबऑर्डिनेट, नाउ दिस इज समथिंग लाइक, सही वर्ड और हो सकता है कि कॉप जो है कार्डिनल या कॉर्डियल रिलेशन विद सबऑर्डिनेट। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम बट बिलिटलिंग एम्प्लॉय डज नॉट ब्रिंग एनीथिंग गुड। अब इनको आप एडवाइस कर रहे हो या सजेशन दे रहे हो, या मतलब प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहे हो, है ना। हमें यहाँ पे सजेशन देना है एक आउटसाइडर की तरह। सजेशन किस लिए देना है, टू ओवरकम दिस सिचुएशन। तो बॉस को क्या करना है भाई, बॉस को प्रोफेशनल लाइफ है एंड देन ही हैज़ टू लर्न फ्यू थिंग्स, है ना। उनको टीम मैनेजमेंट, टीम स्किल, इमोशनल अवेयरनेस, मोटिवेशनल अवेयरनेस, ठीक है ना, ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप बॉस को क्या कहोगे कि भैया आप कुछ ट्रेनिंग करो या कुछ सेमिनार कराओ, ऐसी चीज़ों से आप सीखते हो, ठीक है। सबऑर्डिनेट पे भी अप्लाई होता है कि इफ़ दे कैन कम टुगेदर, ठीक है, एंड बी बोल्ड अबाउट दिस, तो उनको क्या असर्टिवनेस ट्रेनिंग चाहिए होगी, ठीक है। So they can clearly state out if there is some issue like this, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंड देन ओवरऑल
इम्प्रूविंग इसके लिए अगेन हमारा इसके लिए तो मस्ट है कि आप एक या तो ट्रेनिंग कराओ, ठीक है, या फिर एक सेमिनार या वर्कशॉप कराओ ऑन मेंटल हेल्थ, इमोशन एंड मोटिवेशन पे कराओ. Because again, like happy worker is a productive worker, so this is dependent thing. These are independent variable, this is a dependent variable. वर्क परफॉर्मेंस, इसके लिए भी आप स्पेसिफिकली कुछ जरूरत नहीं है. अगर आपका मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हाइजीन सही है, टीम सपोर्ट है, ठीक है, सॉफ्ट स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, तो इसके लिए आप इसमें से आप चार पांच बातें बात कर सकते हो कि इनको जरूरत है यहाँ पे, ठीक है. तो इसमें टीम स्पिरिट, स्प्रेड द कॉप्स जो बोलते हैं वो, एंड इमोशनल एंड मोटिवेशनल जो है अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए आप ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप ऐसा कंडक्ट कराने का सजेशन दे सकते हो, ठीक है. इन्होंने सबऑर्डिनेट के लिए क्या दिया है, हेल्दी बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल. हाँ, तो आप ऐसे सजेशन दे रहे हो तो ऐसे बोलो कि सजेस्ट टू मेंटेन या ट्राई टू मेंटेन, ऑलवेज बी रेडी फॉर क्रिटिसिज्म बट नेवर टेक एब्यूज इन नेम ऑफ. अब ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कभी एब्यूज बनता है? दिस थिंग्स आर वेरी वेग. वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? कब कितनी आवाज ऊंची हो जाएगी कि इट विल बी एन एब्यूज? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है. तो दिस अगेन पैरामीटर्स लाइक ऐसी एडवाइस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. तो ऐसी एडवाइस मत दीजिए जिसको इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो. टेक आउट टाइम फ्रॉम वर्क फॉर फैमिलीज एंड हॉबीज. हाँ, ये आपकी अच्छी एडवाइस है, इनके लिए हो सकती है. रिलैक्सेशन, लेजर जो है, मेंटेन इमोशनल हाइजीन. बट ये आप थर्ड पर्सन से ऐसा एज्यूम कर रहे हो कि दे नो. अगर होता तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें कर पाते, बट हाँ आप ओवरऑल इनको बता सकते हो. और इसमें हाउ टू वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है ना, हाउ यू विल डू दिस. तो उसके लिए इलस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना. सिर्फ ऐसे हम बता देंगे कि खुश रहो तो नहीं, इट वोंट वर्क, नो. ओके, सो मेक श्योर दैट हाउ यू विल अटेन दोज गोल्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है. लास्ट हमारा पार्ट है इन अबव सिनेरियो व्हाट टाइप ऑफ, देखो आ गया खुद ही ट्रेनिंग. व्हाट डू सजेस्ट फॉर ऑफिसर्स एट वेरियस लेवल इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज. तो इसमें सीधे सीधे सेकेंड आर की रिकमेंडेशन है भाई, कि ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग. तो आप यहाँ पे बात कह सकते हो बिल्कुल कि सेकेंड आर जो है इसको, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए टॉक्स अबाउट ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स एट वेरियस लेवल, इंट्रोडक्शन, मिडल एंड मैनेजरियल जो है आप यहाँ पे इसमें यूज़ कर सकते हो. बट वहाँ पे सीधे सीधे फोर्थ नहीं, मतलब सेकेंड आर्क की रिपोर्ट जो है इस पर बात कहती है. फोर्थ रिपोर्ट भी बात करती है, बिल्कुल करती है, ठीक है. तो इसमें आपको कैसी ट्रेनिंग है ना, टाइप ऑफ, तो मैंने कुछ कुछ तो बता दी, जैसे सॉफ्ट स्किल का हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, असर्टिवनेस ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, इमोशनल एंड मोटिवेशनल अवेयरनेस ट्रेनिंग, तो ये हो गया, ठीक है. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो ये ट्रेनिंग्स आप प्रोवाइड कराओगे, ठीक है. दैट वुड बी सफाइस. तो इन्होंने क्या लिखा है भाई, सबऑर्डिनेट, सॉफ्ट स्किल, हाँ ठीक है, रेफर्स टू पर्सनालिटी ट्रेट, कम्युनिकेशन एंड पर्सनल हैबिट दैट हेल्पिंग टू मेक रिलेशन विद ऑफिस, ठीक है. प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू अपडेट इन हिज ओन फील्ड, ठीक है, भी चल जाएगा. बिल्ड टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग, ये ठीक है. एक टीम बिल्डिंग या स्प्रेड द कॉप्स जो है रिलेटेड जो है वर्क एक्टिविटीज़. तो सिर्फ ट्रेनिंग में जनरली आप बोलते तो ट्रेनिंग है, बट यू कैन सजेस्ट एक्टिविटीज़ एज वेल. लास्टली बॉस के लिए मैनेजरियल ट्रेनिंग, लीडरशिप. हाँ, लीडरशिप आपका एक अच्छा है, ठीक है. तो टीम स्पिरिट और ये सब जो बातें कही हैं वही आप यहाँ पे वापस से लिख दो कि इन्होंने कुछ अलग सा लिखा है. बॉस नीड टू चेंज एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड्स सबऑर्डिनेट. तो ये देखो एक ऐसे ही आपको शब्द जो है पकड़ने होते हैं कि ये एटीट्यूड हमारा है सिलेबस का टॉपिक. तो बिल्कुल एटीट्यूड चेंज लाने के लिए हमें क्या करना है, तो वो बात आप कह सकते हो. जो ट्रेनिंग जो है ना वेल एस्टैब्लिश है, जैसे कुछ बताया ना, असर्टिवनेस ट्रेनिंग है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है, तो दीज आर वेल एस्टैब्लिश मॉड्यूल्स, ठीक है. सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, दीज आर वेल एस्टैब्लिश मॉड्यूल. टीम स्पिरिट, तो ये हर वर्क कल्चर में कहीं ना कहीं सिखाई जा रही हैं, दे आर वेल एस्टैब्लिश. तो वो शब्द आप यूज करोगे तो इट विल शो कि यू हैव प्रैक्टिकल एंड एक्चुअल नॉलेज रादर देन सम हाइपोथेटिकल मेक शिफ्ट चीज़ें.
सेकेंड, नीड टू कॉपरेट विद सबॉर्डिनेट फॉर हेल्दी वर्क कल्चर, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर, देखो अब ये है मेक शिफ्ट, पता चलता है subordinate in case of any ill behavior of senior directly and personally ask for feedback and of improvement, area of improvement. Then ये आपका ऑलरेडी होता है, हमारा रिव्यू होता है या वर्क ऑडिट होता है, ठीक है. टीम बिल्डिंग एंड कलेक्टिव वर्क इंपॉर्टेंट, हाँ ठीक है आप ये बात कह सकते थे. ट्रेनिंग सजेशन, योगेंद्र कमेटी रिकमेंडेशन ऑन एप्टीट्यूड ट्रेनिंग, ये बढ़िया पॉइंट हो सकता है. स्किल, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग नीडेड फॉर सीनियर एम्प्लॉय रिलेशन विद हेल्दी वर्क कल्चर, टीम बिल्डिंग. तो ये हो गई. आप डेमोन्स्ट्रेशन या सेमिनार करा सकते हो ऑन वर्क कल्चर, एक्सपर्ट बुला सकते हो. तो इतने सारे आपके ऑप्शन हैं. तो ये चीज़ें थोड़ा सा इन डिटेल कम से कम 5-6 पॉइंट लिखो, और जो कीवर्ड जो यहाँ पे बताए हैं उनको डालना बहुत ज़रूरी है. कंक्लूजन क्या लिखा है? दस इन वेस्टर्न कंट्रीज देयर आर yoga center, lounges and fixed work hour provision for office staff. So such provision in India can also help in making quantitative and work to qualitative result. अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो ये बात किए हो, ये रेलेवेंस थोड़ा सा कम हो गया है. क्या इंडिया में हमारा फिक्स्ड वर्क आवर नहीं है? इट्स वेरी हार्ड टू से. और इस केस में तो ऐसा कहीं नहीं बात कही है कि ऐसा नहीं है, ठीक है. तो गवर्नमेंट में तो बहुत होता है, कहीं कहीं पे नहीं भी है, बट दिस इज नॉट व्हाट इज गिवन इन द केस. तो आप यहाँ पे बेसिकली कंक्लूजन में यही बात करोगे कि इन हमने जो दो थीम आइडेंटिफाई की थी ना, यही कि बैलेंसिंग ये एंड डेवलपिंग वर्क कल्चर इज विन विन, क्रिएट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, है ना. तो आप ये बात कहो तो ज़्यादा बेहतर आपका एक कंक्लूजन आता है. हेल्दी वर्क कल्चर इज मस्ट फॉर एफिशिएंट प्रोडक्टिव. देखो आप यही बात कह रहे हो, आप छोटा सा हो गया है ना. वर्क कल्चर पे आपने बेसिकली बात कही, और प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज पे हमने क्या बात कहा आपको कि आप वर्क कल्चर एंड सेपरेशन ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इज क्रिएट अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर. तो आप खाली प्रोडक्टिविटी या कंपनी पे नहीं, सबकी बात कर रहे हो. खुद इंडिविजुअल के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके वर्क के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए, उसके सबऑर्डिनेट के लिए, इवन बॉस के लिए. तो सबके लिए जो है अच्छा विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है ना. So this is a better and comprehensive conclusion that you can provide over here. So that's all for today's case study. I hope कि आपको हेल्प मिली हो, इससे आप समझ पाओ कि कैसे आपको कुछ जो कीवर्ड्स हैं, है ना, कुछ चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी, जैसे वर्क कल्चर रिलेटेड है, ट्रेनिंग रिलेटेड है, और कॉम्प्रिहेंसिव कैसे आपको एक कंक्लूजन देना है, कैसे पार्ट्स को. आप देखो जब हम केस को पढ़ रहे थे तभी हमने अच्छे से दो चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली, और जो बाद में साबित हो रही कि हाँ दीज आर द केस इज बेस्ड ऑन दीज 2 थिंग्स, है ना. तो आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी. जनरली 2 से 3 चीज़ें ही होती हैं किसी केस में. तो आप आइडेंटिफाई करो, उनके साथ जस्टिस करो, तो डेफिनेटली विल गेट वेरी गुड मार्क्स. सो सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.